यूनिवर्सिटी ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਅਲਫਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਜੀਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਲਫਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਲਫਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰਸਟੀ ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਸਭ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੰਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ। ਦਿੱਲੀ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਬੂਤ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਅੱਗੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਓਪੀ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰੀਬ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਲਾਸਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਬਲਾਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਵਾਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂਚ। तो दिल्ली तो कश्मीर तक छापेमारी का सिलसिला जारी है और डीजीपी हरियाणा पहुंचे जो मैं बार बार इस करके भी जिक्र कर रहे हैं क्योंकि किते ना किते ये पूरा मामला उस पासे भी इशारा करता है कि एक पासे NIA है, दूजे पासे जिहड़ियां होर एजेंसियां ने देश दियां वो भी हरियाणा पुलिस भी दिल्ली पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच के विच लगातार लगी हुई है। रुख करदे हां अल-फलाह यूनिवर्सिटी तो इस समय साडे सहयोगी शंकर आनंद साडे नाल जुड़ रहे हैं फरीदाबाद तो। शंकर, जानना चाहेंगे क्या कुछ आपके पास इस समय जानकारी, कौन कौन सी एजेंसियां वहां पर पहुंची हुई हैं? हरियाणा के डीजीपी भी कुछ समय पहले वहां पर पहुंचे थे। देखिए, इस वक्त में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की टीम अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर है और यहाँ पर रहने के दौरान में आप इन्वेस्टिगेशन का दायरा जो है वो काफ़ी आगे बढ़ाया जा रहा है। आज सुबह में तकरीबन 6 बजे के लगभग में आज ईडी की टीम यहाँ पे पहुंची और अभी इस वक्त में काफ़ी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को खंगाल रही है, काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को खंगाल रही है और जांच के दौरान में काफ़ी इनपुट्स को खंगालने का प्रयास कर रही है। हालांकि जिस तरह से इस यूनिवर्सिटी की नींव कैसे पड़ी, इसकी मान्यता कैसे मिली, उससे भी जुड़े दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए यूनिवर्सिटी का फंड कैसे जनरेट होता है, कहाँ से पैसे आते हैं, कहाँ से जाते हैं, कहाँ और स्टूडेंट का फ़ी, इसके बाद अन्य जो लेन देन जो होता है उन तमाम चीज़ों को भी खंगाला जा रहा है। हालांकि आप थोड़ी देर पहले यहाँ पर हरियाणा के डीजीपी भी आए थे, उसके साथ साथ में कुछ उनकी टीम भी आई थी जो मौके का मुआयना करने के लिए आए थे कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया चल रही है, किस तरह से जो एक ग्राउंड लोकेशन है उसका मुआयना करने के लिए हरियाणा के डीजीपी भी आए थे। दूसरी तरफ देखा जाए, अगर केंद्रीय जांच एजेंसियों की देखा जाए तो जांच एजेंसी NIA के द्वारा पहले से ही इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और दूसरी तरफ देखा जाए आज इस मामले में जांच एजेंसी ईडी की एंट्री हुई है। ईडी के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले पर जांच की जा रही है और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। तकरीबन 25 ऐसे लोकेशन हैं जहां पर इस वक्त में सर्च ऑपरेशन की जा रही है, जिसमें कि लोकेशन की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और सर्च ऑपरेशन के दौरान में जो प्रमुख जो एक बातचीत है वो है 9 ऐसे शेल कंपनियों से जुड़े हुए इनपुट्स को खंगालना। जो 9 सेल कंपनियों की अगर बात करें तो ये 9 सेल कंपनियां जो अल फला यूनिवर्सिटी है उसके जो निदेशक हैं उनके द्वारा जिस तरह से उनके कई और परिवार के सदस्यों के द्वारा जिस तरह से उनकी भूमिका रही है, तो उन शेल कंपनियों के माध्यम से जिस तरह से लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शंस हुआ उसको भी खंगाला जा रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए जो ट्रस्ट से जुड़े हुए कई सदस्य हैं जिनका दुबई कनेक्शन है, उस मामले में भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, उससे जुड़े हुए इनपुट खंगाले जा रहे हैं। क्योंकि जांच एजेंसी को ऐसे इनपुट्स मिले थे कि अल फला यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जो निदेशक हैं उसके काफ़ी चल अचल संपत्ति जो है वो फॉरेन में भी है। तो किन किन लोगों के नाम से है, उनके परिवार के किस सदस्यों के नाम से हैं, या विदेश में तालीम हासिल कर रहे हैं उनके बच्चे, तो किस तरह से वहाँ पे उनको पैसे भेजे जाते हैं। तो तमाम जो छोटी छोटी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको जांच एजेंसी के द्वारा खंगाला जा रहा है। और कहा जा सकता है कि देर शाम तक इस मामले में जांच एजेंसी के द्वारा औपचारिक तौर पर तमाम जानकारियों को साझा किया जाएगा कि अब तक जांच के दौरान में किस तरह से तमाम इनपुट्स मिले हैं और किस तरह से इस मामले में लगातार कई लोगों के खिलाफ मुश्किलें बढ़ाई जा रही हैं। जिस तरह से खासतौर पर उन लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं जो अल फला यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और जिनके खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग करने का जो आरोप लगा है उनकी मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ने वाली हैं। दूसरी तरफ देखा जाए कि एक यूनिवर्सिटी में किस तरह से एक वाइट कॉलर टेररिज्म का जो मॉड्यूल तैयार किया गया था और कुछ लोगों की जो भूमिका है वो कुछ लोगों को भी तलाशा जा रहा है कि किन किन लोगों की भूमिका रही है, किनको इस बात की जानकारी थी या किसको नहीं थी। तो इस पूरे ग्रुप में, इस पूरे मॉड्यूल में कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे उसको खंगाला जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कई अलग अलग एंगल से इस मामले में इन्वेस्टिगेशन हो रही है। एक तरफ जो स्थानीय पुलिस है, हरियाणा पुलिस की, वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो भी कुछ आरोपियों से जुड़े हुए इनपुट्स पे काम कर रही है। और तीसरी तरफ देखा जाए तो 2 प्रमुख जो जांच एजेंसी NIA और ईडी वो अपने अपने सेक्शन के तहत इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो कहा जा सकता है कि इस मामले में काफी जांच ठीक है, मतलब जांच तो एक तरीके से तेज तरीके से ही चल रही है। शुक्रिया, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे शंकर, धन्यवाद फिलहाल के लिए। तो अल फला यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦਬਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਲ ਫਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, तो उसने बहुत सारे सवाल खड़े किए ने। और जो जिक्र एक लाइन का किया साडे सहयोगी शंकर ने कि वाइट कॉलर टेररिज्म तो यूनिवर्सिटी के अंदर की यही हो रहा सी और किन्ने होर लोग ने किन्नियां दे संपर्क दे विच सी या किन्ने लोग इस गल तो जाणू सन कि जिहड़ा ये डॉक्टर उमर है कुछ अजिही चीज़ पका रहा है जो देश के खिलाफ है। खैर कुल मिला के जांच एजेंसियां दी जांच जारी है।